दोस्तों को भी मारना चाहते हो शायद। अजय बाहर जाना चाहता है ये। करो केस खत्म हो जाए। ചീട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് രവീൻ രാജനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാ അവന്മാര് ഇപ്പൊ ബോംബേറിയതിനു ശേഷം കളിയൊന്നും നടത്തല്ല. ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലാവണ്ട. पोकर गेम ताश के पत्ते खेल देना जिसमें क्लब खोलेंगे ना ये നടത്തി നോക്കുന്നേ. अच्छा पैसे कमाने के लिए। लागे पत्ते टॉस ले लिया उन्होंने। जीतने लग गए शायद ये ताश खेल के। जुआ करवा रहे मतलब नहीं। ये उनको पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना, बिना पैसों के कैसे चलेगा फिर। क्या हो रहा है? शादी हो रही शादी है। अच्छी बहन की शादी की तैयारी हो रही इसकी है। बहन की शादी हो रही है शायद, कि इसके दोस्त की शादी हो रही। अच्छा उसी की दोस्त की शादी हो रही, जो कपल लड़ रहे थे उस दिन गाड़ी में। दोस्त की हो रही है। उनकी लाइफ फिर से मतलब पहले जैसे हो गई। पैसा आने लगे दोबारा से, शराब पीने लग गए। ओ फिर से झगड़ा यहाँ भी हर जगह झगड़ा करते रहते हैं। लड़कियां भी पी रही है, सब पी रहे हैं। से पी रखी है उसने भी। എന്തായാലും कहीं पसंद तो नहीं करती इसे ये? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയോ? हाँ मुझे भी ऐसे लगा। സത്യം പറയോ? നീ ആ സഖിനെ अच्छा അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയണേ? ആ കേസ് अच्छा उसे बस जर्मनी जाने के लिए। മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. അല്ല സാറ് ദുബായ് പോലത്തുള്ള അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ നോക്കാവോ? ദുബായാ? ആ ഏതാ ടീം? ടീച്ചറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ വല്ല ആൾക്കാരാണോ? എനിക്കറിയാവുന്ന ടീമാ. നാളെ ഇനി എന്താവുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. കാര്യൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ടീം ഓക്കെ अजय ആണെങ്കിൽ बाहर जाना चाहता है ये। ആലോചിക്കാം. करो केस खत्म हो जाए उसका। 2:30. ലിച്ചോട് വന്നേ. നാളെ രാവിലെ പോകാനുള്ളതല്ലേ? വേണ്ട നടന്നേ. ഞാൻ പോട്ടെ. എടാ ഈ ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് കാണുന്നില്ലല്ലോ. उसने गले लगा दिया उसे। ആരാ ലിച്ചി? ഞാനടി. ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന്? ഡാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായ പെണ്ണേതാണെന്ന്? अच्छा अपनी अपनी बात कर रही थी। നൈറ്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് और लगे इसकी शादी है उसके दोस्त की। दो नैना परिंदे कहता मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना
कि अब क्या कर भर गए उड़ान। ഞാൻ വിട്ടു കയ്യൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറാം ये जो चला गया, ये उठ के गया था, क्या करना चाह रहा है ये? किसी को फोन कर കുളിസിയും കാണാൻ പറ്റിയ വല്ല ആന്റിമാരും ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. വേറെ ആന്റിമാരല്ല, പെൺമക്കളുള്ള ആന്റിമാര്. अच्छा इसने पुलिस को फोन कर अच्छा दिया। पुलिस वाला था ये। पुलिस वाला था नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया। रेड पर भी शट। इसमें भी पकड़े गए, ये वाला धंधा भी बंद हो गया उनका। कितने केस हो गया वो पैसे कमाने के चक्कर में। हैं? നിങ്ങളെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കാതെ എനിക്കിത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. हाँ ഒരു കൊലക്കേസ് കണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയ സാറേ दो केस हो गए उनके। ഇനി ഉണ്ടാവില്ല സാറേ. ചെല് ചെല്. ഓ അരെ പോടാ. अच्छा दे दिया ये वाला मौका भी। അവന്റെ പേര് ജയ്സൺ. സാബു വീട്ടിലിരിക്കാം. ില്ലായിരുന്നോ? എന്നാ നീ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തീർക്കണ എഴുന്നേക്കണ മാറി. സാറേ കുറച്ചും കൂടെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. നിന്നോട് എന്ത് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണ? ചത്തുപോയി വെടിമറ മുമ്പിൽ വന്നാ നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു കെട്ടി തൂക്കും. എസ് പി നമ്മുടെ നാരക പിന്നല്ലേ പിടിച്ചോണ്ട് പോണവനെ. കാര്യം നമ്മളെ ബന്ധമൊക്കെ തന്നെയാ. പക്ഷെ മേലെ ഇവന്റെ ഒരു കേസിനെ വിളിക്കരുത്. ഞാൻ വരില്ല. इसके यार में थे वो। ബന്ധം ഇല്ലാടാലും ശരി. अपने आदमी को यार बताइए। നിന്റെ ഈ പൂങ്ങടി കേട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിർത്തിയത്. अपनी बीवी से कैसे बात कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन है। इसका भाई शायद। ऐसा लग रहा है मुझे। कितना गुस्सैल है ये? मेन तो ये रवि है, ये बहुत गुस्सैल है। എനിക്കിതൊന്നോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവൻ കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല, ഞാൻ കൊല്ലും കേട്ടോ. ചോയ്സൊക്കെ ആണ് അവിടെ പരിപാടി തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു 2-3 രൂപ അമ്മാരെല്ലാം इसकी माँ परेशान हो रही है। എന്താ ചെയ്യണ്ട തോമസ്? എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു എന്റെ മോനെ കുഴി ചടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. അത് ഒരു അപ്പനുണ്ടാവില്ലേ, ആംഗളമാരുണ്ടാവില്ലേ? KSFയിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറിയുണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ, അത് വിളിച്ചെടുത്ത് തരാം. ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക. അതെ, ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ പേരിൽ ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലല്ലേ. ओ बैंग जमीने भी इनके। ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം. അത് ഷണ്ടായിരുന്നു നടത്താൻ നോക്ക്. കാശ് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാലും കാശ് മേടിച്ചാൽ ശരിയായില്ല. നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ വലിയ അത് പറ. सोच रहे 50 लाख आएंगे, नहीं 50 लाख ही बोलता था ना। 30 लाख 30 लाख बोला था ना। നമ്മുടെ ചങ്കാട ये देखो 5 लाख में भी मानते कि नहीं मानते? हाँ बोल तो रहे हैं। അങ്കമാരിട്ട് തന്നെ പണി. प्लानिंग तो वही चल रही है इनकी। पर मारेंगे तो है ही। हाँ वो मारना ही चाहते उसको। हाँ इसे फेंक दी। അങ്ങനെ കോടതി ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ള പൈസ സ്ഥലം വിറ്റ് ഉടനെ കൊടുക്കാന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കണേ. अच्छा शादी भी हो गई। शादी हो गई। कर ली इसने। രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ചൊരു ചെറിയ പരിപാടി. लीजिए। तो इनकी बड़ी हैप्पी लाइफ होगी। കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് അച്ചപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ കായോർത്തൊക്കെ പോഞ്ഞിട്ടി അവള് अच्छा दुबई। अच्छा ये भी दुबई जाने का प्लान बना रहा है। ഇതാണല്ലോടാ
എപ്പോഴാ കൊടുക്കുന്നേ? നാളെ കാലത്തിന്റെ വക്കീലിന്റെ അവിടേക്ക് വരാനാണ് അവന്മാരോട് പറഞ്ഞേക്കണത്. എന്റെ പൊന്നു ഭീമ, അതേപോലെ ഞാനത് കെട്ടിയെടുക്കാന്ന്. ആ മൂക്കന്നൂര് ലേഡീസ് നടത്തുന്ന ഫ്രൂട്ട് മാറ്റി फिर से पंग करने लग गए. ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എത്ര दिवाली है क्या? അവന് കിട്ടി പന്നിയുടെ 2 പടക്കം മുട്ടാലും ശരിയാവും. फिर से തോമസ് क्या है इनको बस. ये तो वही है ना जिसको स्टार्टिंग में दिखाया गया था. हाँ वही तो है. ऐसे अपनी शॉप खोल ली. ओ ये अच्छा तभी गया था ये उन गुंडों को लेके इन्हें पीटने के लिए. स्टार्टिंग में दिखाया था. सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. സജേട്ടാ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. अच्छा तब दिखाया था ये. तब गया था ये उनके पास. इनको पैसे मिल गए थे 5 लाख में. मान गए थे शायद. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കശവിശ പാടില്ല. പിന്നെ അവന്മാർക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂല്ലേ? അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. അമ്മ താഴെ ഉണ്ട്. पता नहीं उसे घर दे भी रहे कि नहीं दे देते रहे. कि नहीं देते. हाँ अपने लिए रख रहे होंगे. खुद ही रख लेंगे वो रुपए तो. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത മാസം ദുബായിക്ക് अच्छा दुबई जाएगा ना अभी. അവളവിടെ അല്ല. ഇനി ഇവിടെ വന്നാ ശരിയാവില്ലടാ. വൈകിട്ട് പ്രദർശന സമയത്ത് പേപ്പർ വീട്ടിലേക്ക് 2 ടെണ്ണമലും പോർക്കർച്ചും കൂടി ഞെരിച്ചിട്ട് പോവാന്ന്. पता नहीं अंदर से कितनी तो सेटलमेंट हो गया दोनों के बीच में. सेटलमेंट तो मोमो से हुआ बस. ये नहीं है ना ये तो. अच्छा दे तो दिए उसने कुछ रुपए. लेकिन वो तो उसको मारना चाहता है. अब ओ, अब मारे अब जा रहे अब मारने. जाएंगे उसको मारने. अच्छा तो दिखाई दी स्टार्टिंग में ये नाटक वाले ना बार में मौजूद थे. इन्हीं में सदन था वो. वही लोग है ना ये. अच्छा वही है. ऐसे क्यों बने होते? अच्छा त्योहार के लिए. हाँ फेस्टिवल के लिए. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടികൾ ബാറിലേക്ക് വരും. അവിടെ കുടിക്കാം. देखो बाहर में चले गए थे. अच्छा और तभी वो भी गुंडे लेके आया था. हाँ और ये भी थे वहाँ मौजूद. अच्छा ये गुंडे किसके होंगे? अरे वो लेके आया था ना जिसको मारा था दुकान जिसको में. दुकान में मारा था वो भी लेके आया था और ये भी वहाँ मौजूद थे. हाँ ये वही वाला सीन है. झगड़ा होने लगे. लड़ाई शुरू हुई थी यहाँ. मानना चाह रहे थे. चुपचाप देखते रहे. हाँ ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് പണി നടക്കൂല. अच्छा अभी भी शांत नहीं हुई. अब रात की प्लानिंग कर रहे हैं. 2 നൈസായിട്ട് അടിക്കാം. ആണോ കൂട്ടുപിടിച്ചോ? റോട്ടിൽ നിന്നാണ് കഥ പറയണേ. മതിലിടിയാറായി. എനിക്ക് പല കാര്യം വെള്ളം കുടിച്ച വയറ്റി കിടന്നുള്ള അധികം ചുറ്റുണ്ടോ? खुद ही शराब. ഇതിന്റെ കോപ്പ് പടക്കം കത്തിക്കണോ? ചേട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. कहाँ ले जा रहे हो? कहीं मरवाना देगा उन्हें. ले नहीं रहा खुद ही तो जा रहे हो कहीं. മതി മതി കാണാൻ കാണാൻ
अब कैसे बन गए दोस्त हैं? अंदर क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ये वही था ना? ये तो वही है जो मानना चाह रहे थे उसे। उसके घर में चले गए थे ये। उसकी बहन आ रही शायद ना बाहर। हाँ, वो अंदर ही जा रहा है। अंदर चले गए वो। തീർത്ത് മറിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കില്ലേ? ये तो बहन कहाँ चला गया? चारों सामान में शायद उन और बाकी लोगों को बुला रहा शायद ही। हाँ उसको ही मार दिया उसने। ये सबको क्यों मार रहे हैं? वो चीज समझ नहीं आ रही मुझे। दोस्तों को भी मारना चाहते हो शायद। अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता ना वो। नहीं वो तो इससे लेनी थी ना बदला। हाँ उसको भी मार रहे हैं। अब सबसे ही ले रहा ना वो। उसके पीछे पड़ गया वो। भीड़ इकट्ठा हो जाएगी ऐसे में तो। यार पहले भी इसने इसको छोड़ा था ना। ढूंढता रह गया उसे। भाग गया। मर गया अपना आप। जल गया पटाखों के बीच। वहां चला गया था जहाँ पटाखे बिछा रखे थे ना। बैंग करिए। ये वही है। पहचानने പള്ളിയങ്ങാടി ടീമിലെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ സെബാട്ടി പോർക്കിറച്ചിയൊക്കെ പറക്കി തിന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ 2 സ്മോളൊക്കെ അടിച്ച് നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാവും. तो यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। अंगामली डायरीज और स्टोरी कुछ नहीं थी, बस वो दिखा रहा था उन्हें। मतलब यही था इसमें, लड़ाई झगड़ा वही सब करते रह रहे थे। कहने का मतलब ये कि रियल लाइफ में जब चलेगी तो नहीं जो उन्होंने उसमें पेपे जो कैरेक्टर ले रखा है तो उसके लाइफ में जो चलता है वही सब दिखा रखा बस। बाकी इसमें ऐसा कोई स्टोरी वगैरह है नहीं कुछ ज्यादा। शुरुआत तो वहीं से हुई ना जब उसके पापा ये काम करते थे। उसके पापा वैसे ही थे लड़ाकू टाइप के। मतलब तो मारना उनका एक ग्रुप था ना जिसके साथ दुश्मनी उसको जिंदा ना छोड़ना। वैसे ही अब अपने बेटे को भी यही सिखाते थे। उसका बेटा भी ऐसे ही बना और फिर उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। बाद में फिर आबाद हो गई जब वो दुबई चले गए। नहीं पर बहुत मतलब मुसीबत फंस गया था वो एक तरह से ना। जिस तरह से उसने
वैसे चाहता तो नहीं था उसे मारना, पर ये था कि उसकी मौत हो गई थी। बाई मिस्टेक वो मर गया था, उसका हाथ फिसला और वो उसके ऊपर गिर गया था। हाँ, तो तब उसे मतलब ये था कि मतलब उसे लगा तो था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। पर ये था कि तब तक वो उसकी मौत हो गई थी। और फिर वो सेटलमेंट करने की कोशिश करते रहे, फिर वही सब उनका चलता रहा, एक दूसरे से सेटलमेंट तो हो गया लड़ाई था, झगड़ा क्योंकि जब उन्होंने रुपए दिए लास्ट में हुआ, लेकिन सेटलमेंट, लेकिन जो उनके साथ और आदमी थे उन्होंने ये ठान लिया कि इनको मार भाई था जो, और फिर अपने उनको ही मारने लगे जिन्होंने रुपए दिए थे। पर पहले भी वो कोशिश करते रहे ना उसे मारने की, और वही सब लड़ाई झगड़ा चलता रहा उनका। फिर किसी तरह से जब रुपए दिए, फिर उसके बाद भी उसका जो भाई था उसने मतलब बदला लेने की कोशिश की, और फिर वो खुद ही मारा गया जिस तरह से वो उन पटाखों के बीच चला गया था। तो मतलब मूवी में कोई स्टोरी तो वैसे है नहीं, बस यही है कि वही दिखा रहा सब किस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और किस तरह से एक मतलब वो हो जाती है, एक आदमी की मौत हो जाती है, फिर वो किस तरह से मतलब सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, और कितने बिजनेस करते हैं बस यही सब दिखा रहा था इस फिल्म में। और बाकी मतलब मुझे मूवी में बस ये सही लगा जिस तरह से वो दिखा रहे थे ना फाइट, मतलब जिस तरह से फाइट हो गया, जिस तरह से मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे, और जिस तरह से मतलब सब कुछ चल रहा था, जो विजुअल्स जो थे मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम रियल देख रहे हो अपने सामने में ना, सब कुछ रियल लग रहा था। लड़ाई भी ऐसे कर रहे थे वो जिस तरह से वो भाग रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और जिस तरह से उनके फैमिली में चढ़ा था, तो वो सब मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रियल ही है। और फाइट तो बिल्कुल ऐसा लग रही थी सही में लड़ रहे हैं ऐसे लग ही ना था किसी की बिल्कुल वैसा है मतलब ना। और ऐसी भी नहीं दिखा रही थी फाइट की जो जैसे फिल्मों के लिए अलग से दिखाते हैं ना, अलग से मतलब एक तरह से शॉट लिए जाते हैं और कुछ एक्शन सीन्स इस तरह शूट किए जाते हैं। हाँ मतलब एक तरह से वो होता है मतलब कि स्टाइलिश वे में दिखाया जाता है फाइट को थोड़ा ना अलग तरीके से। इसमें बिल्कुल ऐसा दिखाया हुआ जैसे नॉर्मली लोग लड़ते हैं रियल लाइफ में। तो वो चीज़ मुझे सही लगी फिल्म में। और बाकी एक्टिंग अच्छी लगी सबकी। बस ये कि अगर इसमें स्टोरी भी कोई होती तो और मज़ा आता तो तब मज़ा आता। क्योंकि सेकंड हाफ के बाद मैं इंतजार कर रहा था कुछ नया होगा फिल्म में, लेकिन नया तो था नहीं कुछ। कोई लड़ाई बढ़ती गई। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। फर्स्ट हाफ में कुछ हो ही नहीं रहा था, बस वही वो बिजनेस कर रहे थे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वही सब दिखा रहे थे बस वो। और फिर उसके बाद भी कहाँ कुछ ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा ट्विस्ट आया कहानी में, कुछ भी नहीं आया। वो बस उसकी डेथ हुई, फिर वो अपने को बचाने के लिए सेटलमेंट करने की कोशिश करते रहे, फिर वही सब उसमें भी लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था। फिर सेटलमेंट हुआ, फिर वही लास्ट में भी फिर से लड़ाई झगड़ा, वो भी बहुत लंबा दिखा रहे थे चलने में लगे समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद मतलब वो कब उसे मारने जाएगा इतना लंबा चलने में लगे हैं। कैमरा ले आ रहा है, कैमरा उसके पीछे। तो ओवरऑल मतलब मूवी ठीक है, एक तरह से ठीक तो नहीं है, बस बोरिंग है। और ये है कि मूवी में एक्टिंग अच्छी है और जिस तरह से फाइट वगैरह दिखा रही है वो अच्छी है। बस मूवी में यही है दिक्कत कि इसमें स्टोरी है नहीं कुछ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।